So we were discussing about the political freedom. So political freedom came, and for that, why did political freedom came? Because of end of colonial rule, and this end of colonial rule led to an adult extension of adult franchising. What does it mean? Here we are actually discussing about the empowerment of the working class. Initially, the workers or the laborers, they does not have any rights. They were just treated like slaves or like anything else. But now working class get a powerful instrument because now they can influence the state policy. State policies or the state legislations policies are now prepared according to the requirement of the working class. So now working class use their political powers because trade union has got a special power, special political power. Now they are using their political powers for betterment and getting progressive legislation. What is progressive legislation? Progressive legislation means it is for the betterment of the society, betterment of the workers, and not only for the employers. पहले जितनी भी पॉलिसीज बनती थी वो सारे एम्प्लॉयर्स के लिए होती थी एंड नॉट फॉर द एम्प्लॉय. बट प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन में यहाँ पे वर्कर्स को पावर दिया गया, ट्रेड यूनियन में पावर दी गई. जैसे इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है राइज ऑफ सोशलिस्ट, अनदर रिवोल्यूशनरी आइडिया. तो इसके बाद कार्ल मैक्स का कॉन्सेप्ट आया. तो कार्ल मैक्स ने सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट दिया ना, ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म. कैपिटलिज्म से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है. ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी. सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब फॉर दी सोसाइटी. तो उन्होंने वर्कर्स को ये कॉन्सेप्ट दिया, द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स. तो यू हैव टू यूनाइट द वर्कर्स. तो वर्कर्स को एम्फसाइज किया गया यहाँ पर. एम्फेसिस वाज ऑन दी वर्कर्स. ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी में. फिर धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोसाइटी, माने ह्यूमन अप्रोच वाज यूज्ड in everything. The philanthropic, the social reformers influence the shape of labor legislation. तो यहाँ पर social reformers का एक impact हुआ on the social legislations. क्या इस तरह की बात आने लगी. अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ establishment of ILO. Establishments of ILO. ILO, International Labour Organization, through conventions and recommendations, has undertaken the task of creating international minimum standards of labour, which constitute the ILC, that is International Labour Code. They cover a wide range of subjects, including wages, hours of work, annual holidays with pay, minimum age of employment, medical examination, maternity protection, industrial health, safety and welfare, social security, freedom of association, right to organize and bargain collectively, employment condition of seamen and employment. ये लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएलओ का कॉन्सेप्ट. आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म. इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन था उसके जो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशन. इनका क्या था, डिफरेंट कन्वेंशंस हुए लाइक कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, उसमें डिफरेंट रिकमेंडेशंस लाए. They have undertaken the task of creating international minimum standards of labor, which constitutes the task of creating which constitute the International Labour Code. ये जो है creating international constitute the International Labour Code, ILC. This is code, CODE. ये जो कन्वेंशंस एंड जो रिकमेंडेशन हुए थे आईएलओ में, तो आईएलओ के जितने भी कोड है वो सब मिलके आईएलसी बना, वहां से इंटरनेशनल लेबर कोड बना. सो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट वाज देयर. बहुत सारी चीजें उस पर डिस्कस की गई.
like a subject including, subjects में क्या क्या, including wages, सबसे पहले था wages, हमें पता है कि सबसे पहली चीज हमारी wages ही होती है, right? wages, wage, उसके बाद हुआ hours of work, कितने घंटे काम होगा, पहले काम की कोई लिमिटेशन नहीं होती थी, annual holidays with minimum with pay, minimum age of employment, पहले एज का कुछ ये नहीं था, चाइल्ड वर्कर्स वे कॉमन, मेडिकल एग्जामिनेशन, मैटरनिटी प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड बार्गेन कलेक्टिवली, बार्गेन कलेक्टिवली का मतलब ही है it is related with your trade union, employment condition of seamen, it is seamen and employment, ये आपका था टोटल वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, दिस वाज द सब्जेक्ट्स which were covered in the ILC initial days, मतलब इनिशियली जब ILO का फॉर्मेशन हुआ था तो इन सारे सब्जेक्ट्स को लेकर डिस्कशन की गई थी. The ILO standards have influenced Indian labor legislation to a great extent. ILO standards have formed the seat anchor of Indian labor legislations, especially after 1946 when Indian national government assumed office. The directive principles of state policy in Article 39, 41, 42, 43 and 43A of the Constitution lay down policy objectives in the field of labor having close resemblance and influence to the ILO Constitution and the Philadelphia Charter of 1944. लास्ट डे मैंने इसका शॉर्ट नोट दिया था और ये हमने पढ़ाई भी की थी, मैं रिपीट कर रही हूँ. आईएलओ स्टैंडर्ड जो बना था, आईएलओ स्टैंडर्ड्स हैव इन्फ्लुएंस, हमारा जो इंडियन लेबर लेजिस्लेशन है उसको बहुत ज्यादा, मतलब आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो पॉलिसीज फॉर्म की उसका पूरा इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन लेबर लेजिस्लेशन में आया टू अ ग्रेट एक्सटेंट. स्टैंडर्ड्स हैव फॉर्म, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे बने थे, they have formed the seat anchor. Standards have formed the sheet anchor. Sheet anchor मतलब क्या, पूरा वहां से कॉपी किया गया, seat anchor of labor. ऐसे भी हम लोग को पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है बिकॉज इट हैज टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एवरी लेजिस्लेशन. तो सीट एंकर ऑफ इंडियन लेबर लेजिस्लेशन इसलिए हम बोल रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 1946 व्हेन इंडियन नेशनल गवर्नमेंट हैज टेकन द ऑफिस, इंडियन नेशनल गवर्नमेंट हैज assured office, assured office. Now, the directive policy, principles of state policy in Article 39, 40, 41, ये दिया है देखो 39, 41, 42, 43 and 43A of the Constitution lay down policy objective in the field of labor having close resemblance and influence of the ILO, influence of the ILO Constitution and the Philadelphia Charter of 1944. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटायर सेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका पूरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे जो स्टेट पॉलिसी में है. हम लोग को पता है कि टोटली हमारा जो लेबर लेजिस्लेशन है, इंडियन लेबर लेजिस्लेशन, उसके ऊपर टोटल आपका किसका इन्फ्लुएंस है, आईएलओ का, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का. बट स्टिल हमारे डायरेक्टिव पॉलिसीज में कहाँ देखा जा रहा है, इन आर्टिकल 39, 41, 42, 43 एंड 43A. भाई और आप देखो वहां से फिलाडेल्फिया चार्टर जो है ना 1944 का, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली है. ठीक है. ILO both directly and indirectly has a great influence in Indian, ये देख लो आप. अब influence of colonial rule, the British civil servants carried with them the British tradition of democracy and pragmatism.
The Workmen Compensation Act 1923, the Indian Trade Union Act 1926, the Payment of Wages Act 1936, etc. followed British pattern. ये क्लियर होगा कि इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल रूल किस तरीके से था। हमारा जो यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स लोग का रूल यहाँ पर था, उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हुआ था हमारे ऊपर, ये हमें पता है कि लेबर लेजिस्लेशन जितना भी आया, एक तो वो लैंकाशायर इंडस्ट्रीज जो थे उसका प्रेशर के कारण आया था, बिकॉज labor employed in factories and mills in India were proving very cheap in comparison to their British counterpart. No doubt this legislation was beneficial to Indian labor, but this benefit was incidental to main purpose, that is the protection of the interest of British capitalists. तो ब्रिटिश हम लोग ने ये जो पहले जो फैक्ट्रीज एक्ट आया, जो हम लोग इनिशियल फैक्ट्रीज एक्ट पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, कि इनिशियली जो फैक्ट्रीज एक्ट आया था, दैट केम इनटू बीइंग ओनली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट। लैंकाशायर टेक्सटाइल्स ने इसी वजह से तो ये किया था ना कि इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं दे आर वेरी चीप। इसके कारण क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर्कर्स हैं वो तो काफी महंगे थे ना उस टाइम में भी। तो इट नो डाउट इन्फ्लुएंस द इंडियन लेबर, और इंडियन लेबर को फैसिलिटीज भी कुछ मिलने लगी, बट इसका मेन जो था, मेन कारण, the main reason behind it is the protection of the interest of British capitalists। ठीक है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है, the struggle for national emancipation and adoption of Indian Constitution। ये हेडिंग है, the leaders of the national movement had promised the establishment of a better and just social order after independence, which was ultimately embodied in the preamble fundamental rights and directive policy principles of state policy of the Indian Constitution. Repressive labor laws were replaced by progressive labor laws। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है द स्ट्रगल फॉर नेशनल इमेंसिपेशन एंड एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एंटायर हेडिंग है, इसमें ये पॉइंट जो यहाँ पर मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोग को, द इंडस्ट्रियल वर्कर्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल एंड नेशनलिस्ट लीडर who made tireless effort to get protective labor legislation। देखो इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोग तो बहुत ही बुरे कंडीशन में थे, उन लोग का बहुत एक्सप्लॉयटेशन था और बहुत बुरे कंडीशन में थे उन लोग। तो उन लोग के मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोग को मैंने दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम में जो फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने स्ट्रगल किया उससे इंडस्ट्रियल वर्कर्स लोग को फायदा हुआ। नेशनलिस्ट लीडर्स हु मेड टायरलेस एफर्ट, नेशनलिस्ट लीडर लोग भी, क्योंकि हमारे कंट्री की हालत बहुत बुरी थी, तो बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट भी उस टाइम चल रहे थे। सो दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लोग बहुत एफर्ट कर रहे थे कि प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन आए, जिस और इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन लेबर एक्सेट्रा वाज बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया था इस टाइम में, ये सब ना उस टाइम की बात हो रही है जब हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। हिस्ट्री में जब आप स्टडी करोगे तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब नेशनलिस्ट मूवमेंट होगा तो उसका इम्पैक्ट तो हर एक जगह पर होगा, जहां जहां ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हर एक जगह पर ही तो मूवमेंट हो रहा था ना, स्ट्रगल तो हर ही जगह थी। ब्रिटिशर्स लोग पूरी तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, दबा के रख रहे थे, मतलब पूरा तरह से उनको एक प्रेशराइज करके रख रहे थे। तो जब मूवमेंट हो रहा था तो हर जगह पर से ही काम हो रहा था ना, तो इसी वजह से देखा गया द लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट
had promised the establishment of a better and social order, मतलब एक social order आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि एक प्रॉपर सोशल सोसाइटी में आप लोग को एक ये दिया जाएगा, which was ultimately embedded in preamble. तो preamble में देखा भी है fundamental rights and directive principles of state policy, Indian ये सब चीज देखो. repressive labor laws they are replaced by progressive labor law, that too in the during the nationalist movement and after the nationalist movement. आफ्टर दी नेशनलिस्ट मूवमेंट ओनली, नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था उसके बाद ही ये सब हुए थे ना. ठीक है. अप्रोच टू लेबर लॉ एंड लेबर रिलेशंस. मैं हेडिंग दे रही हूँ और हेडिंग के अंदर में शॉर्ट करके जितना लिखा रही हूँ आप लोग उतना भी पढ़ोगे तो चलेगा. ठीक है. मैं जो कर रही हूँ इतना पढ़ लेने से आप लोग का क्लियर हो जाएगा. यू डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर बुक, बट बुक पढ़, मोमिता को आदत है पूरा बुक पढ़ेगी वो. ओके. হ্যাঁ না ম্যাম এগুলোই পড়বো. ঠিক আছে ঠিক আছে. ওকে. Labor law seeks to regulate the relations between an employer or a class of employers and their employee. There has been a remarkable change in the approach to labor law and industrial relations since the World War II. Philadelphia Charter, adopted in 1944, provided that labor is not a commodity. And that poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere. Social duty on the part of employer as the main bedrock on which this law is built. ये सबसे पहला आप देख लो एक फिलाडेल्फिया चार्टर जो है 1944 का, that proved a very important role in labor relations and labor law, labor legislations, everything. क्योंकि यहाँ पर देखा गया लेबर लॉ सीक्स टू रेगुलेट. लेबर लॉ किस लिए हमें ये पता है दैट लेबर लॉ क्रिएट्स और रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर और अ क्लास ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर एंड विद अ क्लास एम्प्लॉयर और अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड द एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉयर या और अ क्लास ऑफ एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर्स है ये, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं एंड देयर एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को एस्टेब्लिश या उसके रिलेशंस को माने प्रॉपर मेंटेन करना या प्रॉपर चेक करना, ये किसका काम है? लेबर लॉ का. देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज इन द अप्रोच टू लेबर लॉ. ये हमें पता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू के देयर हैज बीन अ रिमार्केबल चेंज इन द अप्रोच टू द लेबर लॉ. आप देखो इंडस्ट्रियल रिलेशंस या लेबर लॉ में एक पूरा ड्रास्टिक चेंज हुआ आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर टू. फिलाडेल्फिया चार्टर जो है, जो कि अडॉप्ट किया गया था इन 1944, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिलाडेल्फिया चार्टर इसने पूरा एक तरीके से लेबर को एक इम्पोर्टेंट एक रास्ता दिखा दिया. फिलाडेल्फिया चार्टर अडॉप्टेड इन 1944 प्रोवाइडेड दैट लेबर इज नॉट अ कमोडिटी. पहले चीज ये बताया कि लेबर इज नॉट अ कमोडिटी. ये फिलाडेल्फिया चार्टर में ही ये बात की गई. पहले तो लेबर को जस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में रखा जाता था. And that another what is discussed here is that poverty anywhere is a danger to prosperity everywhere. देखो पॉवर्टी अगर कहीं भी होगा ना, कोई भी जगह पर पॉवर्टी होगा, उसका डेंजर प्रॉस्पेरिटी पर सभी जगह पर होगा. मतलब कहीं पर भी लोग भूखे मर रहे तो उसका इम्पैक्ट दूसरे जगह पर होगा. देखो चाइना में कोरोना हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगह छूट गया, सब जगह पर फैला दिया ना. तो इसका मतलब कहीं पर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो दूसरे सोसाइटी के दूसरे जगह पर भी उसका इम्पैक्ट होगा. राइट. Social duty on the part of employer as the main bedrock on which this labor law is built. इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ किस लिए हम लोगों ने बनाया? What is the main reason for which labor law is built?
Labor law is built on this social duty concept. Employer has got a social responsibility towards their employee. Understand it clearly. अगर employer का कोई social responsibility होता ही नहीं, सिर्फ profit maximization is my main concern and I will only go ahead with my profit maximization. तो मेरी सोसाइटी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे कोई माथा पच्ची नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं होता. बट क्योंकि हमारा सोसाइटी के तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज व्हाई दिस लेबर लॉ इज बिल्ट ना, इसी वजह से ये बनाया गया. Nature of labor legislation. हेलो हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? ম্যাডাম একটু হ্যাঁ আমি বলছিলাম তৃষা বলছিলাম